Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 19 जनवरी के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए एक सजेशन, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स बनाने से आपकी रिवीजन होगी और एग्ज़ाम से पहले आप जब पढ़ेंगे नोट्स को, जब रिवाइज करना होगा, तब ये नोट्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन, हम बात करेंगे वरुणा एक्सरसाइज की। ये वरुणा एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज़ के बीच में होती है? आर्मीज़ के बीच में, नेवीज़ के बीच में, एयरफोर्स के बीच में, कब, कहाँ, किन के बीच में होती है? तो याद रखेंगे, ये सबसे पहले तो ये नेवी के बीच में होती है। नेवीज़ के बीच में दो कंट्री की, वो है इंडिया एंड फ्रांस। इन दोनों की नेवीज़ के बीच में आपकी ये वरुण एक्सरसाइज होती है, जिसका अभी हमें 21वां एडिशन देखने को मिला 2023 में। दूसरे फिर आते हैं डीजीसीए। डीजीसीए क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इनके द्वारा भी टाइप सर्टिफिकेशन दिया जाता है, बेसिकली एक अप्रूवल दिया जाता है ड्रोन्स को। तो एस्टीरिया एरोस्पेस वो ऐसी पहली कंपनी बनी जिनके 2 ड्रोन्स को डीजीसीए का सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। उनमें से एक ड्रोन की हम बात करेंगे, A200 XT ड्रोन को अभी रिसेंटली डीजीसीए का टाइप सर्टिफिकेशन से सम्मानित करा गया। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और जो ड्रोन्स है बेसिकली अगर हम देखें तो ये एग्रीकल्चर में आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर स्प्रेइंग, फॉर इरिगेशन पर्पसेस, या फिर डिलीवरी के लिए, पेलोड को डिलीवर करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये आपका ड्रोन्स को यूज़ किया जा सकता है। और आने वाले टाइम में बताया जा रहा है, आने वाले 4 से 5 साल में इंडिया आपका ड्रोन्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, या फिर आप कहेंगे ड्रोन पे बहुत ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट किया जा रहा है। इवन ड्रोन्स को आप एज अ बॉम्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने देखा हो रशिया वर्सेस यूक्रेन में अभी जो वॉर चल रही है, तो रशिया ने काफ़ी सारे ईरानियन ड्रोन्स का यूज़ किया है एज अ बॉम्ब के तौर पे, ताकि ईजिली मैन्यूवर कर सकते हैं और जहाँ पे लोकेशन पे, जहाँ पे जाके ये अटैक करना चाहते हैं, वहाँ पे इनको अटैक कर सकते हैं। इन ड्रोन्स की मदद से अब ये ड्रोन्स बढ़ के आएंगे सामने हमारी इकोनॉमी में, तो इससे क्या होगा, जो डिमांड है पायलट की वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसमें भी हमें देखने को मिलेगा इंक्रीज़। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन आर्मी डे की। 2023 में हमने 75वां इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व किया है, याद रखेंगे। फिर आ जाता है वर्ल्ड का पहला एग्रीकल्चर फोकस सैटेलाइट। अभी इसने $108 मिलियन का रिवेन्यू जनरेट किया टू
फॉर साउथ अफ्रीका। अब कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा, यहाँ पे वेदर को प्रेडिक्ट करके कि कहाँ पर मान लो बारिश होने वाली है, किस एरिया में रेनफॉल होगी, किस एरिया में रेनफॉल नहीं होगी, कहाँ पर आपका सनलाइट पूरे दिन रहेगी, कहाँ पर सनलाइट नहीं रहेगी, कब फ्लड आ सकती है, कब आपका ड्रॉट पड़ सकता है, कब सूखा पड़ सकता है। तो इसके हिसाब से पूरा एक प्लान बनाने के लिए, एक डिटेल्ड प्लान बनाने के लिए कि आपको इस जगह पे ये करना चाहिए, आपको इससे ऐसा करना चाहिए, ठीक, पूरा एक एनालिसिस करके प्लान बनाया गया। और उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं ये सैटेलाइट ने काफ़ी मदद की। इसने जो स्पेस से इमेज लेने में भी काफ़ी हेल्प की, काफ़ी अलग अलग इमेज ली, जिससे ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे हमें कैसी प्रोसेस में क्या करना चाहिए, ठीक। तो अभी वर्ल्ड का जो पहली एग्रीकल्चर फोकस सैटेलाइट है, उन्होंने $108 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके दिया। किसको? साउथ अफ्रीका को। ये लॉन्च किया गया था बाय ड्रैगन फ्लाई एरोस्पेस ऑन SpaceX Falcon 9 रॉकेट की मदद से। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 साल बाद USA की कंटेस्टेंट बॉनी गैब्रियल, इन्होंने क्राउन मिस यूनिवर्स टाइटल को जीत लिया है। इनको क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स टाइटल 2022 से। देखो, और जैसे 2022 में है ना, तो 2021 की जो मिस यूनिवर्स थी जो थी हरनाज सांधू, उन्होंने इनको क्राउन किया, ठीक है। तो लास्ट ईयर की जो होती हैं विनर, वो क्राउन करती हैं। तो याद रखेंगे बॉनी गैब्रियल USA की हैं, इनको मिस यूनिवर्स 2022 से क्राउन किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया एंड UAE के बीच में। इंडिया और UAE ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया कि ग्रीन हाइड्रोजन की डेवलपमेंट करेंगे, हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन ही क्यों? क्योंकि जब हम ग्रीन हाइड्रोजन को बर्न करते हैं ना, तो इसमें से आपके वाटर वेपर्स निकलते हैं, ना कि कार्बन। कार्बन तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, लेकिन वाटर वेपर निकलते हैं। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, इन्होंने एक अंडर सी केबल कनेक्टिविटी की भी यहाँ पे बात की गई, अंडर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव के अंडर, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऐसे याद रखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, ये इंडिया और फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में। गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कमला देवी की। ये आपका लास्ट एंड 5th फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज है, जिसको भी कमीशन किया गया है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं UAE नेम्ड ऑयल चीफ सुल्तान अहमद अल ज़बैर को एज COP28 का क्लाइमेट प्रेसिडेंट। अगर पूछा जाए COP28 कहाँ पर होगी, तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगी। दिसंबर अगले मतलब इसी साल 2023 में होगी, इन दी एंड नवंबर दिसंबर मंथ में। नेक्स्ट बात करते हैं कॉग्निजेंट के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किनको अपॉइंट किया गया है, वो हैं राजीव रवि कुमार। याद रखेंगे रवि कुमार को नया CEO अपॉइंट किया गया है कॉग्निजेंट का, और ये किनको रिप्लेस करेंगे, ब्रायन हम्फ्रीज को ये रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू CEO ऑफ कॉग्निजेंट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 150 ड्रोन्स को सैंक्शन दिया है, एग्री ड्रोन्स को लोन के लिए, ताकि जो लोग इनको परचेज करके यूज़ करना चाहते हैं उनको लोन प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई। 150 गरुड़ा एग्री किसान ड्रोन्स रहेंगे, गरुड़ा एरोस्पेस के रहेंगे ये। और गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। ये एक ड्रोन मैन्युफैक्चर कंपनी है, टेक स्टार्टअप है, ये भी याद रखेंगे, गरुड़ा एरोस्पेस। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे उनकी तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे सान्या राणा क्षेत्रम 2.0। ये बेसिकली आपको याद रखना है एक साइबर सिक्योरिटी की सेमिनार कम वर्कशॉप कराई गई थी, इसको हैकेथॉन भी कह सकते हैं, कराया गया था साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, ताकि जो भी हमारा ऑनलाइन थ्रेट है हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अभी आप देखेंगे US में भी आपका जो एयरपोर्ट था उस पर किसी बग की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से पूरा एयरपोर्ट बंद हो गया था। तो आप ये समझिए अगर एक छोटी ग्लिच की वजह से पूरा एयरपोर्ट बंद करना पड़ सकता है, US की सारी फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो गई थी, तो आप एक समझिए कोई अगर अटैक करना चाहे, जैसे एम्स पे अगर आपको याद हो, एम्स पे भी अभी साइबर अटैक हुआ था और बोला गया था हैक कर लिया गया था उनके सर्वर्स को। तो
ऐसे अटैक से बचने के लिए, ऐसे साइबर अटैक से जो आपके इंटरनेट की मदद से होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक किया जा सकता है, उनका डाटा को चुराया जा सकता है, वहाँ पे उनके आईडी पासवर्ड्स को चुराया जा सकता है। ऐसे से बचने के लिए ही ये आपका सेमिनार कम वर्कशॉप कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया? इंडियन आर्मी के द्वारा कराया गया था। कहाँ पर कराया गया था? शिमला, हिमाचल प्रदेश में इसको कराया गया था। ठीक है, और ये है आपका सैन्य रणक्षेत्रम 2.0। यहीं पर आपको इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, लोगों को ट्रेन किया जाएगा, यहाँ पे उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे बेसिक चीज़ होती हैं जिससे आप साइबर थ्रेट के या साइबर अटैक के एक आप विक्टिम हो सकते हो। तो उनसे बचने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये कराया गया था। इंडियन आर्मी के द्वारा कराया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी अडानी एंटरप्राइज ने पार्टनर किया है अशोक लीलैंड के साथ एंड बेलार्ड के साथ। बेलार्ड ये क्या है? ये आपकी एक कनाडा बेस्ड कंपनी रहेगी। तो इन तीनों ने मिलकर क्या कहा कि हम हाइड्रोजन माइनिंग ट्रक को डेवलप करेंगे, एशिया का पहला हाइड्रोजन माइनिंग ट्रक। अडानी एंटरप्राइज ने क्या किया इसमें से? इस पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो ये जो ट्रक है ये एशिया का पहला ऐसा हाइड्रोजन पावर्ड माइनिंग ट्रक होने वाला है जो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर अडानी ग्रुप की बात करूं तो अडानी ग्रुप ने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट को लीड किया। बलार्ड पावर ने यहाँ पे पावर सप्लाई प्रोवाइड की और जो सेल इंजन है वो प्रोवाइड किया हाइड्रोजन ट्रक के लिए। और अशोक लीलैंड ने जो प्लेटफॉर्म है, एक जो ढांचा होता है व्हीकल का, क्योंकि हम पता है अशोक लीलैंड हमारे ट्रक्स और ऑटोमोबाइल, हैवी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चर में रहते हैं, तो उन्होंने इसके लिए जो ढांचा है वो प्रोवाइड करा। ठीक, तो ये तीनों का आपको याद रखना, इन तीनों के द्वारा मिलके एशिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड माइनिंग ट्रक को लॉन्च करने की बात की गई। ये जो हाइड्रोजन पावर्ड माइनिंग ट्रक होगा will have 3 हाइड्रोजन टैंक्स, 200 किलोमीटर वर्किंग रेंज होगी और इट विल बी पावर्ड बाय बेलार्ड्स 120 किलोवाट पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली G20 के बेसिस पे पहला ग्लोबल टूरिज्म समिट को होस्ट करने की बात की गई। अब इससे क्या होगा? इससे होगा हमारे टूरिज्म बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई कि आप आइए इंडिया में विजिट कीजिए और इंडिया को एज अ टूरिस्ट हब बनाइए और यहाँ पे आप विजिट करके अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग एक इन्वायरमेंट को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे जाके आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक, तो इसी को बढ़ावा देते हुए G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे। और इसका क्या है? वसुधैव कुटुंबकम थीम रहेगी और इसी को यूज़ करते हुए इंडिया ने ये पहला ग्लोबल टूरिज्म समिट को किया, अप्रैल महीने में होगा। और इससे क्या होगा? ग्लोबली हम चाहेंगे टूरिज्म हमारा बढ़े, इवन दूसरी कंट्री से लोग इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें, यहाँ के कल्चर को देखें, यहाँ के लोगों को देखें, यहाँ का जो एक वे ऑफ लिविंग है, यहाँ की जो अच्छी प्लेसेस हैं, हमारी जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी जाने। ठीक, फिर इसी के साथ साथ एक और याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल 5th रैंक पे आया है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स। मतलब फॉरेन से जो लोग इंडिया में आते हैं ना, तो उसमें 5th पोजीशन पे आपका वेस्ट बंगाल आया है। एंड द स्टेट हैज़ एनेक्टेड अ नंबर ऑफ टूरिज्म रिलेटेड पॉलिसीज, जैसे वेस्ट बंगाल टूरिज्म पॉलिसी 2019 में आई थी, टी टूरिज्म पॉलिसी आई थी कि उसमें से जो ओनर्स हैं टी गार्डन या टी जहाँ पे उगाई जाती है उसकी लैंड के जो ओनर्स हैं उसमें से वो 15% लैंड को एज अ टूरिज्म पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे होम स्टेज एंड एवरीथिंग। दुर्गा पूजा एक फेस्टिवल है जो आपका वेस्ट बंगाल में आता है और दुर्गा पूजा अगर आपको याद हो तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी ऐड किया जा चुका है यूनेस्को की। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा अभी एक सोल ऑफ स्टील को लॉन्च किया गया। ये एक एल्पाइन चैलेंज है टू प्रमोट टूरिज्म इन द बॉर्डर एरियाज। देहरादून उत्तराखंड में ये आपका कंडक्ट कराया गया था, वहाँ पर राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये सोल ऑफ स्टील लॉन्च किया गया। ये बेसिकली क्या है? ये एक एल्पाइन चैलेंज है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बॉर्डरिंग एरियाज में। 7th आर्मी वेटरन्स डे पे इसको ऑब्जर्व किया गया था, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक, और ये जो है ना, ये वर्ल्ड का पहला एल्पाइन स्किल एंड एंड्योरेंस चैलेंज रहेगा जो कि जनवरी से लेके जून 2023 तक कंटिन्यू रहेगा। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सब कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स की। अभी यूरोपियन यूनियन ने इस्टेब्लिश किया है पहला मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट को। आई रिपीट, यूरोपियन यूनियन ने अभी अपना पहला मेनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स स्पेस पोर्ट एस रेंज को डिज़ाइन किया है, जो कि एक न्यू सैटेलाइट लॉन्च एंड रियूजेबल रॉकेट टेस्ट फैसिलिटी है एट एस रेंज स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ पर है, स्वीडन में। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको भी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रिपोर्ट जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की गई थी, यह रिपोर्ट है WESO। वीसो क्या होती है, बेसिकली ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, ये ट्रेंड्स 2023 की रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी ILO के द्वारा, जिसमें बताया गया कि आने वाले साल या फिर 2023 में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आने वाला है। इवन हम देख रहे हैं कि जो USA है 19 तारीख को, आज के दिन ही उन्होंने बोला कि अगर उन्होंने अपनी सीलिंग $, की जो डेप्ट सीलिंग है वो नहीं बढ़ाई तो आज US के बाद डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। US जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है, जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है, वो भी डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो एक रिपोर्ट और रिलीज़ की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिसमें बताया गया कि इंडिया में जो क्राइसिस है वो बढ़ने वाली है। आप देखेंगे जो महंगाई है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में आप देखेंगे तो जो बताया गया कि जो इंडिया में महंगाई है, जो गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो डिवाइड बढ़ता जा रहा है। जो रिच पीपल हैं वो एवरी सेकंड एवरी मिनट वो और रिच होते जाते हैं, वेयरएज जो गरीब लोग हैं वो कम और कम उनके पास पैसे होते जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो डिवाइड है वो बढ़ा जा रहा है दिन पर दिन। नॉट जस्ट दिस, आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देखेंगे जॉब लॉसेस अभी से इतने ज़्यादा चल रहे हैं टेक सेक्टर में। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि हम 10,000 एम्प्लॉयज़ को हटाएंगे, अमेज़ॉन कह रहा है 18,000 को हटाएंगे, मेटा ने भी ले ऑफ किया है, और ज़्यादा कई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने टेक एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही हैं बिकॉज ऑफ द रिसेशन न्यूज़ जो कि अभी चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम की। ये गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम बेसिकली मास्टर कार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम में क्या, जैसे नाम आ गया ना, टेक्नोलॉजी और गर्ल्स की बात की गई। और हम जानते हैं स्टेम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में गर्ल्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए, ताकि गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में जाएं। आफ्टर 14 ईयर्स, जैसे 12th के बाद 10th के बाद आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, तो गर्ल्स को यहाँ इंकरेज किया जाता है कि वो साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड में जाएं, इंजीनियरिंग फील्ड में जाएं, मैथ सब्जेक्ट को चूज़ करें और इसमें आगे अपना अर्न करें लाइवलीहुड। इसीलिए मास्टर कार्ड के द्वारा ये गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ताकि स्टेम स्टडीज़ में गर्ल्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई। यहाँ पर कुछ 10,800 गर्ल्स को एंकरेज करने की बात की गई अंडर दिस प्रोग्राम फ्रॉम 30 गवर्नमेंट स्कूल्स इन तमिलनाडु। याद रखेंगे, ये मास्टर कार्ड का एक्सपेंड करने की बात की गई गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम को इन स्कूल्स ऑफ तमिलनाडु, जहाँ पे 10,800 गर्ल्स को यहाँ पे इसके थ्रू अवेयरनेस एंड हेल्प करने की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्टन सुरभि जाखमोला। ये वो पहली वीमेन ऑफिसर बन गई हैं जिन्हों को अभी पोस्ट किया गया ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट BRO। अभी देखो, आपको क्या नाम याद, पहली चीज़ याद रखनी है, सुरभि जाखमोला। ये कैप्टन सुरभि जाखमोला है, ये पहली वीमेन ऑफिसर बनी जिनको फॉरेन असाइनमेंट पे पोस्ट किया गया। चलो ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था जिस पे इनको पोस्ट किया गया, तो वो है प्रोजेक्ट दंतक। ये प्रोजेक्ट दंतक बेसिकली क्या है, भूटान के रोड्स कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था BRO के द्वारा, कि हम भूटान से इजीली कनेक्ट हो सके और भूटान के लोगों को भी कनेक्टिविटी मिल सके। और हम जानते हैं अगर कनेक्टिविटी होती है, अगर रोड्स की डेवलपमेंट होती है, तभी तो आप देख रहे हैं इंडिया में हर जगह रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड डेवलपमेंट की बात चल रही है। इससे क्या होता है, कनेक्टिविटी ईजी हो जाती है, और कनेक्टिविटी ईजी हो जाएगी तो आपका जो ट्रांसपोर्ट है, जो आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो भी कहीं ना कहीं बचेगा और बिजनेस आपका और अच्छे से फ्लरिश कर पाएगा। तो याद रखेंगे, कैप्टन सुरभि जाखमोला ये इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, 117 इंजीनियर रेजिमेंट से बिलोंग करती हैं और इनको प्रोजेक्ट दंतक में पोस्ट किया गया ऑफ भूटान। और ये पहली वीमेन ऑफिसर बनी है टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट
BRO जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। ठीक, अगर प्रोजेक्ट दंतक की बात करूं, ये ओवरसीज प्रोजेक्ट है BRO का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन इंडिया। 1961 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था और विजन क्या था, ताकि आपके जो भूटान है यहाँ पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख सकें, ग्रोथ देख सकें, और इसके लिए यहाँ पे मोटरेबल रोड्स को डेवलपमेंट के लिए भूटान में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा UN मेडल से सम्मानित किया गया फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस इन साउथ सूडान। कुछ मोर देन 1000 इंडियन पीस कीपर्स को ये UN मेडल से इस अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज इन साउथ सूडान। तो अभी हम देखेंगे इसके बारे में पढ़ें तो ओवर 1000 इंडियन पीस मेकर्स वर ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस UN मेडल्स फॉर देयर वाइटल वर्क इन UN मिशन इन साउथ सूडान South Sudan. Around 1,171 Indian peacemakers have received the UN medals. Out of the 1,171 recipients of the UN medals in 2023, 5 were women. मतलब आप देखो इनमें से सिर्फ 5 वीमेन थी जिनको ये सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक की। इनके को अभी बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर 2022। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और इसके लिए जो सर्वे करा गया था वो किया गया था बाय बिजनेस टुडे KPMG। इन दोनों के द्वारा मिलकर ये आपका सर्वे करा गया था और इसमें जो छोटा बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड से जिसको सम्मानित किया गया है वो है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इस अवार्ड को रिसीव किया गया S कृष्णन के द्वारा जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। नितिन गडकरी जी के द्वारा इस अवार्ड से इनको सम्मानित करा गया था। दिस बैंक रिसीव्स द अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बैंक्स विद द बुक साइज ऑफ लेस देन 1 लाख करोड़ रुपीज। और तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक इन्होंने शो किया अपनी एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इनफ टू विद द रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी। ठीक है, चलिए अगर मैं इस UN मेडल की बात करूं, जो एक और यहाँ पे जो UN मेडल दिए जाते हैं टू दीज इंडियन पीस मेकर्स, याद रखेंगे इस मेडल को इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। एक ये चीज़ और याद रखिएगा बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया ने अजूम की है प्रेसिडेंसी फॉर द 13th IRENA। ये क्या है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की जो प्रेसिडेंसी है फॉर द 13th IRENA की प्रेसिडेंसी किसके पास रहेगी? इंडिया के पास रहेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ठीक, इसी के लिए आपको याद रखना है एक फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शोरली डेडिकेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी विच वॉज हेल्ड। ये जो 13th असेंबली हुई थी IRENA के, कहाँ पर हुई थी और कब से कब तक हुई थी? 13 से लेकर 15 जनवरी के बीच में हुई थी 2023 में, और अबू धाबी में हुई थी UAE में, जहाँ पर इंडिया ने अज्यूम की प्रेसिडेंसी ऑफ दिस IRENA। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे जो थीम रहेगी वो आपको पता होनी चाहिए। थीम क्या है आपकी? वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस द ग्लोबल स्टॉक टेक। यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट करना है, और इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ याद रखेंगे COP28 ये कब होगी? ये आपकी 2023 में ही होगी। 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में होगी 2023 में। और इसको होस्ट किसके द्वारा किया जाएगा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा 2028 COP 2028 को, या COP 28 को। ठीक है, नॉट 2028, COP 28 को होस्ट किसके द्वारा किया जाएगा? UAE के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद करेंगे। इसी के साथ साथ याद रखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस के बीच में यहाँ पे इंडिया सोलर अलायंस का ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था 2015 में। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में। फिर इसी के साथ साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो ध्यान देंगे। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो ये लॉन्च किया गया था विद एन आउटले ऑफ 19,744 करोड़ रुपीस। इसको यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था 4 जनवरी 2023 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू लीड इंडिया टू ट्रांसफॉर्म इन इंडिया इनटू द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलोकेट किए हैं 17,490 करोड़ रुपीस फॉर साइड प्रोग्राम, जो कि है स्ट्रेटेजिक इन्वेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फॉर्मर BSF डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह, इनको अभी अपॉइंट किया गया है डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे।
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है री एम्प्लॉयमेंट का 2 साल के लिए ये रहेगा अनटिल फर्दर नोटिस। पंकज कुमार सिंह 1988 बैच के आईपीएस रह चुके हैं, इंडियन पुलिस ऑफिसर, ठीक है। और अगर हम इन्हीं की बात करें तो ये आपके बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं फ्रॉम, मतलब 29th डायरेक्टर जनरल हैं ये आपके बीएसएफ के, ये चीज़ याद रखेंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वियतनाम के जो प्रेसिडेंट हैं न्यूजेन शुआंग फुक, इन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया ड्यू टू एन एंटी करप्शन ड्राइव जो कि वहाँ पर अभी चल रही है। जैसे हम जानते हैं ना, चाइना यहाँ पर आपका चीप लेबर है, इंडिया में हम कहते हैं चीप लेबर है, वैसे वियतनाम में भी काफ़ी चीप लेबर है। और जैसे चाइना फैक्ट्री बनने की बात कर रहा है ना, तो इंडिया कॉम्पीट कर रहा है, तो याद रखेंगे वियतनाम भी इंडिया को चाइना और वियतनाम दोनों से कम्पीट करना है टू बिकम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू डस्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी की। हम जानते हैं जब आप माइनिंग करते हैं, जब आप खुदाई करते हैं, तो आपकी डस्ट हवा में जाती है, और ये डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे खुदाई हुई वहीं पे गिर जाएंगे, ये हवा की मदद से बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे ही इस डस्ट को कंट्रोल करने के लिए CMPDIL, जो कि आपका कंसल्टेंसी सब्सिडरी सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इनके द्वारा अभी एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया है ताकि जो आपकी डस्ट है ना उसको कंट्रोल किया जा सके, मिनिमम कर दिया जाए इन द माइनिंग एरियाज। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं नीला कुरिंजी। ये बेसिकली अभी रिसेंटली इस प्लांट को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ऑन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट्स में ये डाल दिया गया है। तो याद रखेंगे नीला कुरिंजिनी, इसको प्रोटेक्टेड लिस्ट ऑफ प्लांट्स की लिस्ट में इसको डाल दिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट बुक्स की बात करें तो अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा भी एक बुक रिलीज की गई, रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। इस बुक को ऑथर किया गया है इकोनॉमिस्ट संजीव सन्याल जी के द्वारा, जो कि मेंबर हैं ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, और इस बुक को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं दोस्तों, ये तो थे वन लाइनर्स करंट अफेयर्स, अब आ जाते हैं वन लाइनर्स पे। सनिया रानक्षेत्रम 2.0, ये अभी रिसेंटली एक साइबर थ्रेट सेमिनार कम वर्कशॉप थी जो कि लॉन्च की गई थी। अदानी एंटरप्राइज ने पार्टनर किया अशोक लीलैंड एंड बलार्ड ग्रुप के साथ टू डेवलप एशिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड माइनिंग ट्रक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होल्ड किया पहला ग्लोबल टूरिज्म समिट जो कि अप्रैल में था एज अ पार्ट ऑफ इट G20 प्रेसिडेंसी। अप्रैल में होगा, था नहीं, होगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया सोल ऑफ स्टील, ये एक एल्पाइन चैलेंज है ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके इन बॉर्डर एरियाज, और इसको देहरादून उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था। यूरोपियन यूनियन इन्होंने इस्टेब्लिश किया पहला मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट को। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने WSO ट्रेंड्स को रिलीज किया जिसमें बताया गया आने रिसेशन की बात की गई, जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई, स्लो ग्रोथ रेट की बात की गई, और पीपल जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉवर्टी में पुश किए जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग की भी यहाँ पे बात की गई। साउथ इंडियन बैंक ने टाई किया सेल के साथ फॉर फाइनेंसिंग डीलर्स। मास्टर कार्ड एक्सपेंड करेगा गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम टू प्रमोट स्टेम स्टडीज अमंग गर्ल स्टूडेंट्स। इंडिया का फिस्कल ईयर 23 की बात करें, फिस्कल डेफिसिट टू बी एट 17.5 लाख करोड़, और नेक्स्ट ईयर जो होगा फिस्कल ईयर 24, यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट बढ़ के हो जाएगा 17.95 लाख करोड़ का, एज पर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये डाटा रहेगा। कैप्टन सुरभि जाखमोला, ये वो पहली वीमेन ऑफिसर बन गई जिनको पोस्ट किया गया ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट BRO। ओवर 1000 इंडियन पीस मेकर अवॉर्डेड UN मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस इन साउथ सुडान। तमिलनाडु मर्सल्टाइन बैंक लिमिटेड की बात करें, इनको बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इंडिया ने अज्यूम की प्रेसिडेंसी ऑफ द 13th इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA की 13th काउंसिल के द्वारा मीटिंग के दौरान इंडिया ने अज्यूम की है प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट है फॉर्मर BSF डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह, इनको अपॉइंट किया गया डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे। फिर वियतनाम प्रेसिडेंट नुएंग जुआंग फुक, इन्होंने रिजाइन कर दिया एमिड एंटी करप्शन ड्राइव। CMPDIL, इन्होंने न्यू डस्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने नीला कुर्जिनी को अभी लिस्ट किया इन प्रोटेक्टेड प्लांट की लिस्ट में। फिर
यूकी भम्बरी एंड साकेत मैनी, इन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता इन द बैंकॉक ओपन 2022। और ब्रिटिश लिंग्विस्ट रोनाल्ड ई एशर जो कि एक स्पेशलिस्ट थे इन द्राविडियन लैंग्वेजेस, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह की बात करें, इन्होंने एक बुक टाइटल को रिलीज़ किया जो था रेवोल्यूशनरीज बाय संजीव सनियाल जी। रेवोल्यूशनरी बुक का नाम ऑथर रहेंगे संजीव सनियाल। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पे। पहला, यूथ कोलैब, ये यूथ इनोवेशन मूवमेंट है जो कि इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन का एंड किस इंस्टीट्यूट का। सेकेंड, इंडियन इनिशिएटिव हैज़ which Indian initiative has been recognized by the COP15 Convention on Biodiversity. Third, what is the new name of the प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, इसका नया नाम क्या है। फोर्थ, किस कंपनी ने अभी ऑफिशियल पार्टनर बनाया FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 को। ये किस स्टेट में होगा FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, वो भी आपको मेरे को कमेंट करके नीचे बताना है। फिफ्थ आ जाता है सूर्य किरण। सूर्य किरण ये एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट कराई जाती है इंडिया और किस कंट्री के बीच में। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया है। नाउ आपको क्या करना है, इस वीडियो पे लाइक करना है एंड कमेंट करके नीचे बताना है कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। क्या आप चाहते हैं ये सेशन हम फ्यूचर में कंटिन्यू रखें? अगर चाहते हैं कि हम ये सेशन फ्यूचर में कंटिन्यू रखें तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स, मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स और इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम रेगुलरली अपलोड करते हैं ताकि आपके जो डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन है वो होती रहे। इसी के साथ साथ आप हमें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आप यूट्यूब सर्च बार में लिखिए करंट अफेयर्स बाय विकास राणा और आपको मेरे सारे करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएंगी जो कि आप यूट्यूब पे सर्च करके ढूंढ सकते हैं। अफेयर्स क्लाउड हमारे चैनल का नाम है। और अगर आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है, क्विज के लिए आप जाइए कैरियर्स क्लाउड पे। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर वेबसाइट पे भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.